Good morning, class. Today we will discuss the next topic of the chapter, that is industrial pollution and environmental degradation. There is no doubt when we are discussing resource in this book particularly, and the development we are taking. So behind the development, destruction take place, as I told you always it happens. So when we discuss so many industries, obviously pollutions take place there, environmental degradation is taking place. So here, as you know that pollution is of four type, and from our childhood we are discussing them, we are reading them and studying them. But here some causes behind, we know them, but how we can control the environmental degradation when all development is taking place. So the control of this environmental degradation also developing faster, but the need is of the time, that how we are taking them seriously is the main question. So although industries contribute significantly India's economic growth and development, and increase the pollution of land, water, air, noise, and resulting the degradation of environment, and that they have caused cannot be overlooked. मतलब इतना पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, उसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते. इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर types of pollution. So air pollution, the first pollution is that, then water pollution, land pollution, noise pollution, and polluting the industries also including thermal power plants. फिर इसको भी एक दूसरा जो आपके पास जो वाटर को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो आपका थर्मल पावर प्लांट्स भी है. So let's begin. Air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide. I hope in science you all read about. And airborne particulate materials contain in both solid and liquid, and particles like dust, spray, mist, and smoke. Smoke is emitted by the chemical and paper factories. ब्रिक किलिन्स मीन्स जो जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, वहाँ से भी बहुत भारी मात्रा में जो है आपका डस्ट और ये स्मोक निकलती है. रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स आर बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स इन अ बिग small factories that ignore the pollution norms. Toxicated gas leakage can be very hazardous with the long term effect. Are you aware about the Bhopal gas tragedies? Definitely in 8th class we read about this. It took place in 1984, and more than 20,000 people were affected by 25,000 people were affected by this, and more than 3,000 were killed at the moment. So this was drastic, you can say, hazardous event took place in India. And air pollution adversely affect, इतना अफेक्ट करता है कि ये एनवायरनमेंट से निकलता ही नहीं. भोपाल केस ट्विस्टी का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है बिकॉज टुडे इटसेल्फ पीपल आर अफेक्टेड. वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ के पानी में, वहाँ की लैंड में वो सब चीज़ें अभी भी मौजूद हैं. So air pollution adversely affected human health and animal, plants, building, and the atmosphere as a whole. So second is water pollution. Water pollution is very simple, which is caused by the organic and inorganic industrial waste and effluents. Effluents कहते हैं जो भी liquid solid waste जो है water में घुल जाता है, ठीक है, वो effluents हैं discharged into the rivers. मतलब जो भी वेस्ट है वो सीधा सीधा आपका नदियों में या फिर हमारी जो प्योर वाटर के फॉर्म से उसमें जा रहा है. सो द मेन कॉल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर पेपर. अगर हम कहीं सबसे ज़्यादा किससे हो रहा है, तो वो हो रहा है पेपर से. वो हो रहा है पेपर पल्प से, केमिकल से, टेक्सटाइल से, डाइंग से, पेट्रोलियम से, रिफाइनरी से, टैनरीज से, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज से, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ का है, ठीक है, इन सब से बहुत ज़्यादा फैलता है, इससे बहुत ज़्यादा पल्यूट होता है वाटर. सो दैट
let out the dyes and detergents, acids, salts, and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics, and rubber, etc., into the water bodies. Fly ash and phosphogypsum and iron, steel gases, slags are the major solid waste इन इंडिया. ठीक है, ये जितना डेवलपमेंट हो रहा है आप देखिए उसका 100% जो है वो इफेक्ट कर रहा है हमारे वाटर को. अनदर इज थर्मल पोल्यूशन. थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड थर्मल, क्योंकि चीज़ों के लिए जितना भी आपको रिफाइन या क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको जब डिस्चार्ज किया जाता है, दैट हॉट वाटर ड्रेन इनटू द रिवर्स पॉन्ड्स बाय कूलिंग. ठीक है, बिफोर कूलिंग, बिफोर मतलब ठंडा होने से पहले उसको मिला देते हैं, जिससे क्या होता है एक्वाटिक लाइफ असर करती है. ठीक है, मतलब पानी ज़्यादा गर्म होगा तो कहाँ से एक्वाटिक लाइफ बचेगी. ठीक है, वो इफेक्ट होगी. सो वेस्ट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. Nuclear and weapon production facilities caused the cancer, birth defects, and the miscarriages affect by this. And soil, अब आप कहेंगे ये ऐसे कैसे है? क्योंकि ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट में बसती चली जा रही हैं, ये कन्फाइंड हो चुकी हैं. एंड सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड. ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ है आप कैसे भी उसका आइडिया लगा सकते हैं. डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज़ गोइंग टू द अर्थ. आसमान में भी फ्यूम है, स्मोक है. ठीक है, बारिश होती है, ऑटोमेटिकली दैट कम्स टू द लैंड. तो वो कैसे ना कैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जितना यूज़ हो रहा है हम ऊपर ऊपर यूज़ करके, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वाटर आफ्टर द टाइम इट इज़ डंपिंग टू द लैंड. सो डंपिंग फिर और डायरेक्टली जो हम करते हैं वी कैन नॉट इमेजिन. डंपिंग वेस्ट स्पेशली द ग्लास, harmful chemical, industrial effluents, packaging, salt and garbage render to the oil useless, soil useless. एंड मतलब वो सब चीज़ें सॉइल को तो बेकार बना ही रही हैं. रेन वाटर percolates to the soil carrying the pollutants to the ground and ground water also get contaminated. मतलब आज पानी की जो क्वालिटी है, पहले हम कहते थे ना हैंडपम्प से खींच के पानी बड़ा प्योर निकलता है, साफ़ निकलता है, आज उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो गई है, क्योंकि डंपेज भी इतना डीप किया जाता है कि आप उससे भी डीप अगर पानी नहीं निकालेंगे उसके डबल ट्रिपल उस पर, तब भी उसका असर बना रहता है. Another is that noise pollution by the chimneys, by the factories, whatever the pollution comes उसका भी है, फैक्ट्रीज़ का भी है, और फिर दूसरे और भी आज हमारे पास बहुत गैजेट्स आ गए हैं, वो चीज़ें हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन को जनरेट करती हैं. सो इट्स नॉट ओनली रिजल्ट ऑफ द इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन ऑल्सो कॉज द हेयरिंग इम्पेयरमेंट. मतलब हमें इरिटेशन हो रही है या एंगर, गुस्सा आता है, वो तो सही है, लेकिन हियर इम्पेयरमेंट का मतलब जिसको सुनाई देना भी बंद हो जाता है. इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग ऑल अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट. अनवांटेड साउंड इज एन इरेंट and use sources of stress. And then industrial and construction activities, machinery, factory equipments, generators, saw and pneumatic and electric drill also make lots of noise. तो ये भी कारण है. ठीक है, ठीक है, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं व्हीकल, यू कैन से क्रिएट अननेसेसरी अनवांटेड साउंड. ठीक है, हॉर्न्स लगा लेना, या फिर मैरिज पार्टीज, या फिर ऑन द नेम ऑफ रिलीजन मैनी ऑन द वर्शिपिंग टेम्पल, और ये ऐसे प्लेसेस में बहुत ज़्यादा शोर जो होता है समटाइम्स इट इज़ कॉज ऑफ सर्टेन डिजीज़. ठीक है, तो ये हमारे जितने थे पोल्यूशन थे. इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस the control of environmental degradation, how we can control. Okay, till here we discuss. Thank you, have a nice day.